پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث و صورتکار مذاکرات کا اگلا مرحلہ اسلام آباد نہیں ہونے کا گرین سگنل۔ حکومت کی تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات کے نئے دور کے لیے اسلام آباد کو ہی بہترین آپشن قرار دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا بھی آئندہ ہفتے مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کا اندیا۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق دونوں فریق مل کر ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں، جس میں 1 ماہ پر محیط مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا، جن کا مقصد جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کسی تیسرے ملک منتقل کرنے جیسے معاملات پر گفتگو شامل۔ ایران سے جنگ بندی تجویز پر جواب جلد موصول ہونے کی توقع۔ ٹرمپ کو امید، تہران حکومت کو ایک بار پھر سخت پیغام دیا، اگر معاملات آگے نہ بڑھے تو امریکہ دوبارہ پروجیکٹ فریڈم شروع کر سکتا ہے۔ ایران کی فوج ختم ہو گئی، آگے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ شہباز شریف فیلڈ مارشل کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ امریکی وزیر خارجہ کو بھی ایران کے جواب کا انتظار۔ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ امید ہے تہران سنجیدہ مذاکرات کی طرف بڑھے گا۔ ایران امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے، جب کوئی حتمی فیصلہ ہوگا تو باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حالیہ کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی افواج مکمل طور پر تیار ہیں اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران اپنی پالیسی کے مطابق کام کر رہا ہے اور کسی بھی ڈیڈ لائن کو اہمیت نہیں دیتا۔ ایران کا موقف ہے کہ قومی مفاد کے مطابق ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکہ کی جنگ بندی خلاف ورزیوں نے سفارتی عمل پر شکوک بڑھا دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک پیغام۔ عباس عراقچی کی ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا کہ خلیج فارس میں امریکہ کی حالیہ اشتعال انگیز کارروائیوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں نے واشنگٹن کو سفارتی سنجیدگی اور نیک نیت پر شکوک و شبہات میں مبتلا کیا۔ امریکہ کا موجودہ رویہ مذاکراتی ماحول متاثر کر رہا ہے۔ سفارتی عمل آگے بڑھانے کے لیے غیر قانونی جارحانہ اقدامات کا خاتمہ اور غیر منطقی پالیسیوں سے دستبرداری ضروری ہے۔ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کا جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ امریکہ کی حمایت یافتہ قرارداد کے ساتھ کھڑے ہونے کے نتائج سنگین ہوں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا ایکس پر بیان۔ بحرین سمیت تمام حکومتوں کو خبردار کرتے ہوئے لکھا کہ آبنائے ہرمز اہم شہرگ ہے، اسے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ وزیراعظم کا رواں ماہ چین کے دورے کا امکان۔ وزیراعظم کا دورہ چین 23 سے 25 مئی کو متوقع۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی کوئنگ سے ملاقاتیں طے۔ وزیراعظم کی پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل۔ مرکزی تقریب کل صبح GHQ راولپنڈی میں ہوگی۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے۔ تقریب میں چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی شرکت کریں گے۔ فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف یادگاری شہدا پر پھول رکھیں گے۔ تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ تقریب سے فیلڈ مارشل خطاب بھی کریں گے۔ یوم مارکہ حق کو اس عزم کی تجدید قرار دیا جا رہا ہے کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں تاریخ رقم، معرکہ حق کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل۔ پاک فوج نے بزدل دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ باطل کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں بھارتی سورماؤں کا غرور خاک میں مل گیا۔ مودی کے ناپاک عزائم پہلگام واقعے سے جنم لینے والی کشیدگی تاریخ میں عامر ہو گئی۔ فیصلہ کن مرحلہ آپریشن بنیان و مرصوص کی صورت میں 6 مئی سے 10 مئی تک جاری رہا۔ معرکہ حق کی کامیابی صرف عسکری برتری نہیں بلکہ قومی اتحاد، حوصلے اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کامیابی نے ثابت کیا پاکستانی قوم کسی بھی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔
पाकिस्तान ने भारत से एक एक शहीद का बदला लिया। पाक फजाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए, जिनमें राफेल तैयारे भी शामिल थे। आज उन्हें कोई खरीदने को भी तैयार नहीं। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारक फजल चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के एक पेज पर होने की वाज़ेह मिसाल है। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला पंजाब की कौम को मुबारकबाद। हुकूमत और फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। खुसूसी पैगाम में कहा, मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का नाकाबिल फरामोश निशान साबित कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और यह हकीकत हमेशा याद रखी जाएगी। मार्के हक में फतह सिर्फ ताकत से नहीं, अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी से हासिल हुई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा फौज पाकिस्तान ने दानिशमंदाना हिकमत अमली से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना क़यादत में पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जवानों ने दुश्मन के गुरूर को हमेशा के लिए दफन किया। भारत को अपने तैयारों पर गुरूर था। भारत ने हमला किया तो फील्ड मार्शल ने जवाब देने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची सी व्यू पर पीपल्स पार्टी के तहत जश्न मार्का हक से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को धूल चटाई। भारत हमसे तो जंगबंदी का कह नहीं सकता था, इसीलिए अमेरिका से कहा। पाक अफगान बॉर्डर पर अप्रैल 2025 में होने वाला अहम ऑपरेशन जुर्रत के निशान के तहत कामयाबी से मुकम्मल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्द अनासर ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। पाक अफवाज ने जदीद हिकमत अमली, ड्रोन्स और जमीनी कार्रवाई से दुश्मन को घेरे में लिया। ऑपरेशन के दौरान 71 दहशतगर्दों को गैर मौसर बनाया गया। महदूद तादाद में जवानों ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मिशन मुकम्मल किया और महफूज वापस लौटे। पाकिस्तान आलमी सियासत में उभरती हुई मिडिल पावर करार। गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस्लामाबाद ने मुतवाज़िन सिफारतकारी और कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के जरिए आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाई। बदलते आलमी निज़ाम में उन ममालिक की अहमियत बढ़ती जा रही है जो बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की सलाहियत रखते हों, और पाकिस्तान इस किरदार में नुमाया तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत इसे चीन, अमरीका और खलीजी ममालिक समेत अहम आलमी क़ुव्वतों के लिए नागुज़ीर बना रही है। हुकूमत का एक और महंगाई का वार। अवाम पर एक दफा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 15 रुपए बढ़ा दी गई। पेट्रोल डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपए 91 पैसे का इजाफा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 103 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल पर लेवी 28 रुपए 69 पैसे से बढ़ाकर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। महंगाई का एक और तूफान जन्म लेने के लिए तैयार। अवाम जहनी मरीज बन गए। लोगों के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक चुकी। आमदन महदूद और अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। इस तूफान से निजात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। लीगी सदर का कहना था कि अवाम को रिलीफ फराहम करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हों। महंगाई कंट्रोल करके ही अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। नून लीगी हुकूमत की वफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। IMF के कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी। वाशिंगटन इजलास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजे के बाद पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मंजूर। EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। मौसमी तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर्स दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि किस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दामात पर IMF के एतमाद की अलामत है। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ जारी रखेगी।
जंग बंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर इजराइल के वहशियाना हमले जारी। सूर तार नबातिया में शदीद बमबारी, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सिविल डिफेंस एहलकार समेत 62 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह के जवाबी वार, इजरायली फौजियों और चेक पोस्टों को निशाना बनाया। रूस में दूसरी जंग अजीम में फतह की याद में मॉस्को के रेड स्क्वायर पर महदूद परेड, मिसाइल, टैंक और दूसरा भारी फौजी सामान नजर नहीं आया। परेड से खिताब में रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग में रूस के अहदाफ को मुनसिफाना करार दिया। कहा कि रूसी फौज जारहाना कुव्वत के खिलाफ लड़ रही है, जिसे पूरे नेटो इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। अहदाफ के हुसूल तक कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का मुआहदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग रोकने पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। कराची में हीट अलर्ट जारी, अंदरून सिंध पारा 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर क़ैद के लिए आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री तक रहने की तवक्को। शहर में दोपहर के वक्त नमी का तनासुब 55 से 65% तक रह सकता है। 11 मई तक सूबे के वस्ती और बालाई इलाकों में हीट वेव की सूरत हाल जारी रहेगी। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करेगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको पर मुश्तमिल मेजबान ममालिक को तेहरान के तहफ़्फ़ुज़ात और शराइत तस्लीम करना होगी। ईरान की फुटबॉल फेडरेशन का ऐलान। सदर फेडरेशन मेहदी ताज के मुताबिक मौजूदा इलाक़ाई कशीदगी के तनाज़ुर में ईरान अपनी कौमी शनाख्त, सकाफत और मौक़िफ़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मेजबान ममालिक को ईरानी टीम के साथ मुनासिब और बाइज़्ज़त रवैया इख्तियार करना होगा। पाक बांग्लादेश का ढाका में पहला टेस्ट मैच दूसरे रोज खेल के खिताम पर। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन, 236 रन का खसारा। बाकी बांग्लादेश पहली इनिंग्स में 413 रन पर ढेर। मोहम्मद अब्बास की 5 विकेटें। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने मैच में जबरदस्त कमबैक किया। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले अजान उवैस और इमामुल हक ने बल्लेबाजी शुरू की। इमामुल हक 45 रन बनाकर आउट हो गए और अजान उवैस 85 और अब्दुल्ला फजल 37 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। बांग्लादेश ने आज सुबह अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 301 रन 4 खिलाड़ी आउट से किया और स्कोर में 112 रन का इजाफा करके पूरी टीम पवेलियन लौट गई। मोहम्मद अब्बास ने 92 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए। शाहीन आफरीदी ने 3 और हसन अली और नमान अली ने 1-1 विकेट ली। और कदीम दरो दीवार, सफेद रंग में डूबी एक शाहाना इमारत। वक्त की गर्द सहने के बावजूद आज भी उसकी अजमत बरकरार। सिंध की तारीखी सरजमीन को डीजी में कायम व्हाइट पैलेस माजी की शानदार तहजीब और फनी तामीर की खूबसूरत यादगार है। रियासत खैरपुर के तालपुर दौरे हुकूमत में 1835 के करीब तामीर किया गया ये महल उस वक्त की शाहाना तर्ज जिंदगी और आला फनी तामीर की अक्कासी करता है। मुनफरिद तर्ज तामीर और तारीखी अहमियत के बायस आज भी मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है।